हाय वेलकम होम क्यूजीज। आई एम इन होम कि मुझे आज एक अच्छा स्टोरी टाइम करने का मौका मिल रहा है, so why not to just give you my nice story time which is full of drama, full of masala, spices, all tadka in that story. So this story is about my hostel life. बहुत हंसी आती है जब मैं अभी सोचती हूँ कि मतलब हम लड़कियाँ ईगो के चक्कर में मतलब कितना गंदा खेल लेते हैं, राइट? Oh, okay, चलो calm down. So मेरे को कॉलेज से पास आउट हुए हुए मेरे 4 to 5 months हो चुके हैं एंड आई एम अ यूट्यूबर. सो मुझे लगा आई एम नॉट गोना मिस दिस वन अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन एक्सप्रेस एंड वेंट आउट माई हॉस्टल एक्सपीरियंसेस. आई नो एज अ हॉस्टल, एज अ गर्ल्स हॉस्टल टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे कैट फाइट्स तो एक्सपेक्टेड थे ही. एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु इज वेरी इगोइस्टिक. माइंड यू, मैं बहुत काइंड हूँ टू ऑल अदर पीपल, बट ओनली टू पीपल हु आर गुड टू मी. जो मेरे साथ भिड़ जाएगा, आई एम डबल ट्रिपल 10 times egoistic. Where the Dhoom Dhanana begins, where the Star Plus drama begins is second year of my masters. जब हेमा जी हॉस्टल छोड़ के जाती हैं, कोई नया रूममेट आता है हमारे हॉस्टल में. You know, this is always I've observed. Starting में if you have 3-4 roommates and you guys adjust and gel really well, and suddenly एक person वो चला जाता है and another person comes in, तो it becomes really difficult to adjust, right? मतलब नया पर्सन पता नहीं वो कैसे होंगे, वो adjusting है कि नहीं, क्योंकि हम तो हैं ही, because हम सभी को perception होता है that we all are very adjusting. So हमारे साथ भी वही हुआ था, and that's where the actual trauma begins. And I call it drama more than trauma. It's drama, okay? Street chiller drama it was, which I was also happily part of it because it was an ego war. Girls' ego directly proportional, and it was an ego war. I used to see my classmates and other people, they used to cry and they used to went out to the warden कि you know ऐसी है वैसी है, and I used to wonder कि मतलब ऐसा क्या हो गया यार कि तुम रो रहे हो, ऐसा क्या हो गया कि तुम रो रहे हो. And that time I used to not understand because my hostel roommates, they were really good. So I used to see they used to do video call to their parents, they used to cry and they used to be like, I want to change my room, blah blah blah, वो ऐसी है वो कैसी है. And I'm like, okay, because see, since we all come into bachelor's and master's into college, we all of a sudden we are expected to be mature enough, जो हर कोई नहीं होता है. And it took time for me to understand that everyone are not understandable. सब हर कोई adjust नहीं करता है. So हर किसी को ये perception हो जाता है कि तुमने हॉस्टल के पैसे भरे हैं, मैंने भी हॉस्टल के पैसे भरे हैं, मैं ही क्यों adjust करूँ. So it should go vice versa, which is very true. But some people, they become so selfish that they don't even want to adjust even if you're adjusting, just because they have given like a lot of amount. And वो मतलब सेठ है, एकदम सेठ, तो धन्ना सेठ की तरह बैठ जाएंगे और मतलब अपनी ही अकड़ चलानी है, और उनका अकड़ इतना बिल्डअप हो जाता है तो दे वो खुद की भी नहीं समझते हैं. ओके, सो मैटर शुरू होता है जून से. ओके, जून लास्ट ईयर 2024, दैट्स व्हेन हेमा लेफ्ट एंड अनदर पर्सन, द थर्ड पर्सन, यू कैन नेम इट एज एक्स. ओके, शी ही है वो, इट्स अ गर्ल्स हॉस्टल इन कॉलेज. सो शी कम्स इन टू आवर रूम. शी इज अ अक्वेंटेंट, मतलब वो हेमा की क्लासमेट रह चुकी है, एंड वी हैव नोन, शी नोज अस. वो हमारे हॉस्टल में थी बट शी वाज इन अ नॉन एसी रूम. So she comes into our room and we were like, okay, ठीक है, मतलब आ जाना, we know you, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा and all. And June 2024 was a time where I was like super busy. I completed one internship, I was going for another internships, I was doing part-time jobs. That was my first part-time job. Plus मैं अपना academic संभाल रही थी, I was having exams, etc. So initially she was really good. So she was adjusting. So after all this, initially she was really adjusting, the lady X. Okay, and that time Nikita was not there because she was in her home and it was only me and her. And by the time June end हो रहा होता है, I get another internship. I come back to my home. मेरे hometown में रहता है वो internship. So 3 months I'm away from her. Okay, so it was my last Navratri celebrating in Gujarat in my college. So मुझे कैसे भी हो 2024 की नवरात्रि मुझे celebrate करना था. I wanted to do that गरबा. So I have a lot of lehengas and all. So मैंने जल्दी अपना internship खत्म किया. लास्ट ईयर अक्टूबर में था नवरात्रि, एंड अक्टूबर से पहले, दैट इज इन द सितंबर एंडिंग, आई केम बैक टू कॉलेज कि भाई नवरात्रि गुजरात में मनाऊंगी मैं. बाद में ऐसा होता है, वंस नवरात्रि एंड्स, विंटर्स हैज ऑलरेडी बिगन. ओके, तो ह्यूमिडिटी पूरा कम होने लग जाता है, ठंड बढ़ने लग जाता है, सो ऑब्वियसली एसी का इस्तेमाल भी कम होने लग जाता है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. So I used to do a part-time job which was into marketing and I was into international time zone. Okay, मेरे सारे clients international थे, तो मुझे international time zone के हिसाब से मुझे रात को जागना पड़ता था. Okay, so this was a time, that's when this lady X, she raised a concern.
एंड इट वॉज लाइक द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, ओके सॉरी फर्स्ट नाइट ऑफ नवरात्रि। मैं पूरा गरबा सब करके आई हूँ एंड इट वॉज लाइक नाइट 1:45। आई कम टू माई रूम एट 1:45। ऑब्वियसली सर्टेन सी बात है, हमारा आधे से ज़्यादा हॉस्टल वॉज खाली, सब के सब गरबा करने गए हुए थे एंड सबके सब दे वर रिटर्निंग एट 1:40, 2 o'clock, 2:30 को भी लोग आए हैं। आई केम एट 1:45। सो दिस लेडी शी डिड नॉट गो एंड आई कम फुल टायर्ड, ओके मतलब मैं 3-4 घंटा एकदम प्रॉपर गरबा करके आई हूँ। आई एम सुपर टायर्ड। सो आई जस्ट ऑन द लाइट्स एंड इट्स वेरी नॉर्मल, पूरा हॉस्टल का लाइट, हर रूम का लाइट ऑन था। So I just on the light. I was like, guys, give me 5 minutes. I want to get freshen up. I won't disturb you guys. And then I was telling Nikita that you know what, मुझे शायद कल सुबह उठना पड़ सकता है because of my job, etc. सुबह उठना पड़ सकता है, meaning I have to wake up at 5 o'clock. Okay. I was thinking क्योंकि मैंने first day अपना job छोड़ा, right? I went to do गरबा. And this lady X, Lady Dawn, उठती है and she's like, lights on नहीं होने चाहिए. And I'm like, excuse me? She was like, lights रूम के on नहीं होने चाहिए. And then so I'm like, ये क्या है, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? She was like, तुम्हारा नाटक चल रहा है, तुम्हारा ही दबदबा चल रहा है, तुम्हारे हिसाब से इस काम चल रहा है, मतलब मेरे को वीडियो बनाने का भी मौका नहीं दे रहे हैं, इतना ये नेबर्स लोग साउंड कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से। प्लीज़ आई एम सॉरी अगर मेरा आवाज़ आपको मतलब बैकग्राउंड में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा हो, बट मैं अपने पिताश्री को बोल रही थी कि देखो पापा ये देखो what my roommate is doing, and you know what the legit thing is, when I actually told him and he started laughing out loud. I'm like, why are you laughing? This is like first time I'm facing this. And he's like, तो क्या लड़कियों के पंचायत में फंस रही है वैशाली? And I'm like, Dad, I am a girl. You know, मेरे अंदर का एक फेमिनिन साइड ऐसा जगा कि why is it always लड़कियों की पंचायत? लड़के भी लड़ते हैं। But again I'm like, मेन पॉइंट पे फोकस करो। ये औरत मतलब रूम के चेयर के लिए लड़ रही है, रूम के एसी के लिए लड़ रही है, बालकनी के तारों के लिए लड़ रही है, कपड़े सुखाने के लिए लड़ रही है, सोने के लिए लड़ रही है, मतलब उसको चाहिए क्या? What does that lady wants? You know, my father was like, मुझे पता था, I was waiting. तुम 2 साल में तुम एक बार भी कैसे नहीं लड़ी? You know what? Life is giving you experiences. You have to live those experiences. You know, सर हर कोई adjust नहीं करता है. You have to know this psychology, blah blah blah. And I'm like, मेरे को ये सब नहीं सुनना है. You just tell me how should I tackle this lady? Because my father will like, अच्छा चलो उसको फ़ोन दे, मैं बात करता हूँ. अभी वो फ़ोन क्यों लेगी भाई? कल को उसके पेरेंट्स अगर उससे मुझसे बात करना होगा, वो मेरे को फ़ोन देगी तो मैं बात कर लूँगी क्या? मैं तो बात कर ही लूँगी. I am very daring. But opposite person, she won't take it. She'll be like, why should I talk to your parents? I don't want to talk to your parents and all. And I didn't want to hear that from her mouth. But at the end, I'm like, Dad, इसके साथ मेरा जीना बहुत मुश्किल हो रहा है. She's fighting for all the nonsense which I never even imagined. You know, like when I was actually telling these all stories to Hema, वो इतनी हंस रही थी ना. She was like actually legit satisfied. She was like, अब पता चल रहा है तुम लोग को मेरी वैल्यू. I'm like, बहन मुझे पहले ही पता चल गया था तुम्हारी वैल्यू, इसीलिए मैं तुझे रोक रही थी कि तुम मत जा. But keeping all that aside, हम जाते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफिस में and we complain that sir, this lady is fighting for all these things. पूरा खबर पूरा से लिस्ट पढ़ दिया एंड दे वर लाफिंग. दे वर लाइक कहाँ मिले? यू नो दैट इज द एग्जैक्ट रीजन. जब मैं एक्चुअली एडमिशन ले रही थी, आई वाज लाइक सिंगल रूम है क्या? ओनली फॉर मी. मतलब मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी. मैं अपने आई जस्ट लव स्टेइंग अलोन. ओके, आई एम अ पर्सन हु लव स्टेइंग अलोन. आई एम लाइक देयर लाइक सिंगल रूम नहीं है. 3-4 months वी वर इन एब्सोल्यूट ईगो वॉर, जहाँ पे हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे. एक दूसरे को मतलब वो है या नहीं है मेरे को फर्क नहीं पड़ता था रूम में. आई यूज्ड टू नॉट टॉक. आई यूज्ड टू इग्नोर ऑन द फेस. देयर वाज एब्सोल्यूट साइलेंस and the opposite person used to play. बस खेलता था just to prove their ego, just to prove their anger. And that opposite person, that lady X, she was like, मेरे को वैशाली को देखकर बहुत गुस्सा आता है, उसको देखते ही मेरा ऐसा खून खौल जा रहा है. I'm like, तो मैं क्या करूँ? तुमने कांड ऐसा किया है तो मैंने उसको उल्टा जवाब दिया है. So I told this all scenario and all this drama to my friends also, right? And they all suggested this one thing कि रूम चेंज कर लियो. But मेरा यही था यार, मतलब रूम चेंज करना is like again a big procedure. Point was, मैं एक ही महीने मतलब रहने वाली थी इन द हॉस्टल. बस एक ही महीना बचा था. एंड आई एम लाइक, कुछ भी हो, एक महीना ही गुजारना है ना, गुजार लूँ. शी लिटरली फॉट फॉर द बालकनी का वो 3 तार. इफ निकिता इज वाचिंग दिस वीडियो, दिस इंसिडेंट इज फॉर हर. एक बार ये सीन आ गया था कि बालकनी में हमारे 3 तार हैं, तो शी वाज लाइक, एक तार मेरा, एक तार तुम्हारा. एंड आई एम लाइक, ये क्या है? बट शी वाज लाइक, हाँ बालकनी के लिए मैंने पैसे दिए हैं, तो एक तार मेरा, एक तार तुम्हारा. आई एम लाइक, बहन ऐसा मतलब
गॉड, वो मेरे दिमाग में कंप्यूट ही नहीं कर पाया कि वो ऐसा सोचती है. दैट लेजेंड मीम वाज रिसर्फेसिंग इन माय ब्रेन. आई एम लाइक मारो मुझे, मारो मारो. कि व्हाट नॉनसेंस, कहाँ फंस गई हूँ मैं. सर्टेन थिंग्स safeguard you if you don't open your mouth, but certain things also safeguard you if you open your mouth and express, right? And यहाँ पे I did both. First I tried expressing what I wanted, but second I chose silence over verbal spat. लोगों को मतलब पूरी कहानियाँ भी नहीं बताई हैं यार. ऐसे चीज़ों पे हमने लड़ाई करी है ना कि मतलब तुम लोग को लगने लगा कि यार क्या छोटे बच्चे भी इस बात पे नहीं लड़ते हैं. फैन का स्पीड, उसके लिए लड़ाई हो रही है. And I'm like, भाई लोग पुराने जमाने में जंग के लिए जाया करते थे, उसको बोलते हैं लड़ाई. तुम फैन का स्पीड के लिए लड़ाई कर रही है. फैन का स्पीड, मैंने बोला कि रूम बहुत ठंडा हो चुका है तो फैन का स्पीड प्लीज 2 पे रख दो. नहीं, तूने बोला 2, नहीं. अब तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा. अब तो फैन का स्पीड 5 पे ही रहेगा. क्यों? क्योंकि वैशाली को 2 पे चाहिए था, लेकिन नहीं, वैशाली 2 बोली तो उसका एटीट्यूड और उसका ईगो सटक गया. अब तो 5 पे ही होगा स्पीड. We have evolved a lot. And I certainly felt so sad and sick for myself, to be very honest. I felt sick for myself that I am fighting with so and so people and मैं लड़ाई में भागीदार बन रही हूँ और उल्टा जवाब भी दे रही हूँ. एंड मेरे को ये रियलाइज होने में बहुत टाइम लगा. ऐसा नहीं कि इमीडिएटली रियलाइज मैं बहुत संत महात्मा बन गई. नो, मैं मतलब 2-3 महीना तगड़ा लड़ाई कर रही हूँ. बहुत उल्टे जवाब, सीधे जवाब, चिल्ला के लड़ाई किया है. बाकी रूम वालों को बड़ा अच्छा गॉसिप मिला होगा. इस बात को तो दावा करती हूँ मैं. नो, दिस वीडियो वाज कंप्लीट वेंटिंग आउट अबाउट माय हॉस्टल कि मेरे हॉस्टल वाली ऐसे हैं वैसे हैं. मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने भी बहुत कुछ किया है. I'll tell you where all I went wrong. Okay, number 1, I went wrong where I expected other people to adjust for me. That is wrong. सेकेंड थिंग इज हर कोई तुम्हारे हिसाब से या फिर तुम्हारे जैसे लोग नहीं है. लाइक मेरे दिमाग में लोग कैसे रहना है, हाउ ह्यूमन शुड एग्जिस्ट और talk or behave, there's a certain perception, but in other people's brain it's something else, right? So me assuming that the opposite person would also think and behave like this, उनके हिसाब से ये सही और ये गलत है, that was wrong perception and wrong assumption from my side. I wanted to make this video just as a remembrance कि मतलब अगर मैं 10-20 साल के बाद ये वीडियो देखूं, it's just a remembrance कि मैंने हॉस्टल में क्या क्या सहा है.